Assalamu alaikum students. In this video we are going to learn about the topic scarcity of water. Before moving to the topic scarcity of water, let's understand what is water. Water is a substance made up of chemical element hydrogen and oxygen and exists in solid, liquid and gaseous states. वाटर जो है ये दो सबस्टेंस का बना हुआ है। एक है हाइड्रोजन H2O. It is made of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So chemical formula of water is H2O. Where and in what form is water available on the earth? The world's water exists naturally in different forms and locations. It is present in the air in the form of vapors, on the surface of the earth in the form of lakes, streams, rivers, below the ground in the form of geysers, springs, and in the oceans. Water is the only common substance that is naturally found as solid, liquid, or as a gas. The different forms of water, solid, liquid, and gas, in which water exists, are called states of water. Water exists in three forms: solid, liquid, and gaseous form. Now let us learn different forms of water. Ice, snow, frost, and hails are examples of solid form. The solid form of water, ice, is found at the poles of the earth, the snow covered mountains, and the glaciers. Consider this is our earth, this is the north pole, and this is the south pole of the earth. North, this is the south pole of the earth. These two poles of the earth remain covered with the snow and ice throughout the year. So it is the solid form of the water. Liquid water, wet and fluid form of water. This is the form of water with which we are most familiar. The liquid form is present in the rivers, lakes, seas, and oceans. Third and last form of water is gaseous water. The steam or vapor form of water is called gaseous water. It is present in the air as water vapors. Water availability. Water availability is the quantity of water that can be used for human purposes without significant harm to ecosystem and other users. Water availability, both as a surface water and groundwater, is essential for agriculture, human consumption, industry, and energy generation. As you already know, we generate hydroelectricity from the flowing water, that is the energy generation. Now, students, here we have the pie chart diagram. With this diagram,
try to learn distribution of water on the surface of the earth. 71% of the earth is covered with the water. Out of the total area of the earth, 29% is under land and 71% of the earth's surface is covered with the water. Out of this total water, that is 71%. यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम 100% वाटर की बात करेंगे, इसमें से 97% पानी ऐसा है जो सैलिन है, इट इज सॉल्टी वाटर, द वाटर present in oceans and seas. Just 3% of total water is the fresh water. Here it is 3%. And out of this 3%, मैंने अभी बोला हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। जो टोटल फ्रेश वाटर है 3%, अगर हम इसको 100% मानेंगे फ्रेश वाटर को, तो इसमें से जो मेजर पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है इन ग्लेशियर्स एंड इट अमाउंट्स टू 68.7%, ऑलमोस्ट 69%। ये फ्रेश वाटर का वो पानी होता है जो आइस केप्स और ग्लेशियर्स में होता है, 69%। एंड जो ग्राउंड वाटर होता है दैट अमाउंट्स 30% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। जो सरफेस वाटर होता है फ्रेश वाटर का इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, दैट अमाउंट्स टू 0.3%। इसी तरह से देखेंगे, we find that less than 1% of the total fresh water is available for consumption, for human consumption. 1% से भी कम। तो जो ये सरफेस वाटर है 1%, 0.3% मैंने यहाँ पे बोला, इसमें से 87% ऐसा पानी जो लेक्स में होता है। मेजर पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज फाउंड इन लेक्स। और जो रिवर्स है दे कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 2%, एंड स्वैम्प्स एंड marshy areas they cover 11%. This was a brief about the total distribution of water on the surface of the earth. I hope you got it. Water enough water quantity or lack of access to safe water. In this video we are going to learn only effects of water scarcity, the shortage of water, there is a scarcity of water. First of all, water is vital to the existence of plant life. Plants need water for absorbing nutrients from the soil for photosynthesis. Now let us see the effects. First one, plants will wilt and become dry in the absence of water. वो सूख जाएंगे अगर उनको पानी अवेलेबल नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए 4 मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से एक रॉ मटेरियल वाटर भी है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है या तो वो रिड्यूस होगी या ऑलमोस्ट स्टॉप होगी। नंबर थर्ड, ऑक्सीजन रिलीज्ड में गेट डिप्लीटेड। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी
एक तो फूड नहीं बनेगा, साथ में जो फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, वो कम हो सकता है, वो डिप्लीट हो सकता है। नंबर 4, इट मे प्रोड्यूस मच लेस हार्वेस्ट देन एक्सपेक्टेड। जो हमें एक्सपेक्टेशन है प्लांट से कि इसमें इतनी पैदावार होगी, इसमें इतना हार्वेस्ट होगा, उससे बहुत कम होगा, क्योंकि जब होगी फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगी तो प्लांट जो है वो फूड कम प्रोड्यूस करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर प्लांट्स में डाई आउट। अगर ज़्यादा ही शॉर्टेज होगी जो प्लांट्स है ये इसकी डेथ भी हो सकती है। हाँ, ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर? चलिए हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को गौर से देखिए आप। इसमें जो सबसे पहले ये लैंड सरफेस है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सरफेस वाटर है, उसके नीचे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड जोन। यहाँ पे आप देखिए रॉक, फ्रैक्चर्ड रॉक है, तो यहाँ पे आप देखिए सैचुरेटेड जोन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर होते हैं। स्पेस होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर, इसमें ये जमा हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो ये पानी है ये फ्रैक्चर्ड रॉक्स में जमा हो जाता है, या जो स्पेस होती है सॉइल के अंदर इसमें ये जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड वाटर। तो ये पानी जो है इसकी लेवल कितनी है, इसको बोलते हैं हम वाटर टेबल। तो पहले हम ग्राउंड वाटर को डिफाइन करेंगे, इसी में हम बाद में डिस्कस करेंगे वाटर टेबल को। चलिए वापस हम मुड़ते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। ग्राउंड वाटर इज़ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट beneath earth's surface in soil pore spaces and in the fractures of rock formation. कंसिडर, अगर ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, इसके बीच में जो स्पेस रहती है, ये स्पेस, इस स्पेस में जो पानी रहता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। और इसी तरह जो the depth at which soil pore spaces or fractures and voids in the rock become completely saturated with water, वो डेप्थ जिस पे जो ये सॉइल पोर्स होते हैं या सॉइल पोर स्पेस होते हैं या फ्रैक्चर्ड रॉक्स होते हैं या वॉइड्स होते हैं, जहाँ पे वो कंप्लीटली भर जाए पानी से, उस लेवल को, उस डेप्थ को बोलते हैं हम वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल ये दो अलग टर्म्स हैं। द लॉन्ग टर्म रिडक्शन और डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। हम जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए या और किसी चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती इन द फॉर्म ऑफ वेल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल्स। तो एक टाइम ऐसा आता है जो ये पानी की लेवल होती है ये कम हो जाती है। जिस तरह आप इस साल देखते हैं बारिश कम हो गई है, तो ज़मीन के अंदर भी पानी कम है, ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल कम हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म रिडक्शन और डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। जब हम बार बार इसको पंप के ज़रिए से निकालते हैं तो इसमें रिडक्शन हो जाती है या डिक्लाइन होती है इसकी लेवल में।
Factors responsible for the depletion of water table are वाटर टेबल की डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। As the number of humans increases, the consumption of water also increases. जब ज़्यादा लोग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है पानी की, और कंजम्पशन ऑफ वाटर की इंक्रीज़ हो जाती है, और इस तरह से वो वाटर टेबल पे इफ़ेक्ट करता है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। All industries need water. As the number of human population increases, the number of industries are also increase, which definitely increases the consumption of water. जब पॉपुलेशन बढ़ती है उनकी डिमांड पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती है, इंडस्ट्रीज़ को पानी चाहिए, तो इफेक्ट किस पे पड़ता है? ग्राउंड वाटर पे। लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। हम कंजर्वेशन टेक्निक्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को बरोई कार नहीं लाते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो बारिश का पानी है इसको जमा करना होता है, तो उसी को बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। द रेन वाटर विच द मेन सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज नॉट कंजर्व्ड वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स। हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं है, अगर है तो अवेयरनेस बहुत कम है। डिफॉरेस्टेशन। द रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब एंड रिटेन रेन वाटर एंड हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। आपको पता है जो रूट्स होते हैं जब बारिश होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको रिटेन करते हैं, और फिर इसको ग्राउंड में रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को। In the absence of trees or vegetation, ground water is not recharged. अगर किसी इलाके में, किसी एरिया में प्लांट्स बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, घास नहीं है, तो जो पानी है ये ज़मीन के अंदर रिचार्ज नहीं हो जाता है, क्योंकि रूट्स वहाँ पे इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं जब वहाँ पे प्लांट्स नहीं है, विच रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, और फिर वहाँ पे वाटर टेबल की कमी आ जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड। जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ पे पानी की डिमांड बढ़ गई है। irregular rainfall has increased the consumption of underground water, which in turn increases depletion of water table. अब लोग क्या करते हैं, वो वेल्स बनाते हैं, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इरिगेशन से काम लेते हैं, तो इससे जो अंडरग्राउंड पानी है या वाटर टेबल है उसकी डिप्लीशन हो जाती है। वाटर टेबल डिप्लीशन इज प्राइमरली caused by sustained ground water pumping. अगर हम बार बार इसको निकालेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल की डिप्लीशन हो जाती है। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं? सम ऑफ द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर टेबल डिप्लीशन और ड्राइंग अप ऑफ वेल्स, ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा। सबसे पहले जो हमारे वेल्स है या ट्यूबवेल्स है वो सूख जाएंगे, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर ही ख़त्म होगा वाटर टेबल डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर सेकंड, इंक्रीज्ड पंपिंग कास्ट। अब हम अगर निकालना भी चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पंप्स लगाने पड़े। जो मिट्टी ज़मीन के नीचे होती है लोअर लेयर्स में, वहाँ पे जब पानी रहता है तो जो लैंड है वो नॉर्मल रहती है, मगर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर कहीं कहीं भी ज़मीन जो धंस जाती है, लैंड सब्सिडेंस हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर टेबल। डिटीरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी।
जो पानी की क्वालिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी उसमें निकालेंगे उसमें केमिकल्स भी ऐड हो सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। रिडक्शन ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स। जब बारिश होती है, अगर अंडरग्राउंड वाटर या वाटर टेबल ज़्यादा होगा तो पानी सरफेस पे जाता और वो जाता है डायरेक्ट स्ट्रीम्स एंड लेक्स में। मगर अगर अंडरग्राउंड वाटर या वाटर टेबल कम होगा तो पानी ज़मीन के अंदर जाता है और कम पानी पहुंच जाता है स्ट्रीम्स एंड लेक्स में। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलेटेड। इसको रेगुलेट करना चाहिए। वी शुड फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर ढूंढने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है इंटरकनेक्टिंग ऑफ, जो हमारी रिवर्स है, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और इससे सॉइल इरोजन भी कम होगा और हमारा वाटर टेबल भी इंक्रीज होगा। वी शुड यूज़ वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स टू रेप्लेनिश ग्राउंड वाटर। हमें वाटर कंजर्वेटिव टेक्निक्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको एनकरेज करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा, रेप्लेनिश होगा। वी शुड रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड डिस्पोज देम प्रॉपरली। जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर है भी उनको पूरी तरह से डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट न कर सके। वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इज़ द activity of planning, developing, distributing, and managing the optimum use of water resources. Number one, we should practice water harvesting. हमें वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जो बारिश का पानी है इसको हमें हार्वेस्ट करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के अंदर डालना है ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और जो ड्रॉट कंडीशन उस वक्त हम इसको निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड, वी शुड यूज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ प्लांट के रूट पे, जो रूट होता है सिर्फ वहाँ पे हम एक पानी का ड्रॉप्स डालते हैं या पानी इरिगेट करते हैं उस प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर हम दूसरे मेथड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम पूरे खेत को पानी देते हैं तो उससे पानी थोड़ा ज़ाया हो जाता है। जो ड्रिप इरिगेशन है इससे पानी कंजर्व हो जाता है। ये हमें यूज़ करना चाहिए और कई स्टेट्स में ऐसा ऑलरेडी चल रहा है। वी शुड प्रैक्टिस वाटर वाइज हैबिट्स। हमें ऐसे हैबिट्स इख्तियार करने चाहिए जिससे पानी जो है वो ज़ाया न हो और वो अच्छी तरह से मैनेज हम कर पाएँ। नंबर 4, वी शुड नॉट लीव टैप्स रनिंग अननेसेसरी। बहुत से जगहों पे लोग जो पानी के टैप्स होते हैं उनको खुला छोड़ते हैं अननेसेसरी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एफिशिएंट टैप्स होते हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए, रिपेयरिंग करनी चाहिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। वी शुड कंस्ट्रक्ट डैम्स। हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो उसको वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वो पानी को कंजर्व करते हैं, वो पानी को
रिटेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। वी शुड रिपेयर डैमेज्ड टैप्स एंड पाइप्स। अगर कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स डैमेज हुई है तो पानी ज़ाया हो जाता है, या हमारे टैप्स है, नलके होते हैं, वो इनएफिशिएंट होते हैं या टूटे हुए या डैमेज्ड है, उनको रिपेयर करना चाहिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। मोस्टली वी शुड रिसाइकल पोल्यूटेड वाटर। जो पोल्यूटेड वाटर है उसको हमें रिसाइकल करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक टेक्निक है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Students, this was about the topic scarcity of water. I hope you will enjoy this video. Thank you very much.